Hi guys, welcome to our channel. तो now we are going to do trigonometric 2 जिसमें हम लोग कंपाउंड एंगल्स के बारे में समझेंगे और उससे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो एक्चुअली व्हाट इज कंपाउंड एंगल? कंपाउंड एंगल इज नथिंग बट द वैल्यू व्हिच इज having the summation of two angle with any trigonometric functions. Just like that, I'm taking the formulas of compound angles actually. So I'm writing of compound angle, compound and angles. Okay. So just if we have given a sine of sine, this is trigonometric function and a plus b. So here this is sine a and cos b plus cos a sine b. Okay, this is the formula. And if we have given a sine a minus b, a minus b. So this is sine a cos b minus of cos a sine b, minus of cos a sine b. Okay, and the third one is cos a plus b, cos a plus b. So the formula of this is cos a into cos b minus sin a into sin b. Understood this? If cos में here अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा. ओके, सो cos a माइनस b फॉर्मूला इज सेम, केवल साइन डिफरेंट हो जाएगा. cos a cos b एंड यहाँ पे प्लस का sin a sin b. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल्स ऑफ साइन एंड कोसाइन. अभी tan में अगर मैं बात करूं तो tan में जो बनता है वो होता है tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan tan. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अगर माइनस रहेगा तो सपोज अगर tan a माइनस b अगर यहाँ पे रहेगा तो tan a minus of the tan b upon 1 plus tan a tan b. The formula of trigonometric functions of compound angles. Okay, so with the help of this formula we'll solve the questions which is based on compound angle. Okay, so we're taking next page. So in the exercise we have to find out the value sin 15, cos 75, sin 10 105, cos 225. So with the help of compound angle we can find out the value of this trigonometric. Okay, so sine of 15 degree, this is given, sine of 15 degree, and now we have to find out the value of sine 15. So what we do, sine of 45 minus 30. So exactly it is written of 15 degree. So now you can apply the formula sin a minus b. So sin a and cos b and minus cos a and sin b. Okay, so sin 45 is 1 by root 2 and cos 30 is root 3 by 2 and cos 45 1 by root 2 or sin 30 is 1 by 2. So 2 same in the denominator, so 2 root 2 and root 3 minus 1. So this is the value of sine of 15. Okay, so we can find out the value. अभी just if अगर हमें दे रखा cos of 75 degree, cos of 75 degree, so now you can solve with the help of cos of 45 plus 30. But from allied angle, you know, 75 को you can write out 90 minus 15. So 90 minus theta is sin theta. So sin 15 and cos 75 will be the same value. If you solve the things, so you will get out the same value with the help of formula. You can see here cos a cos b minus sin a sin b, and so you will get a root 3 minus 1 upon 2 root 2. Okay, so tan 105, in tan 105 you can solve this thing. This is very easy with the help of formula you can do. And the third question is given, that is tan of 105
So tan of 105 is nothing but the value of tan 90 plus 15, huh? You can see. So cot 225 है, तो cot 225 first of all will change 180 plus 45. This is based on allied angle actually. All the question is not based on this, but if you can apply the formula, then you can find out the answer. Okay. And some question is given for the proof, so you can solve, you can find out the value of this thing. So we are moving the next concept. So proof that the some question is given which we have to prove, huh? So because the जैसे first question दे रखा है cos of pi by 2 minus x, okay, cos of pi by 2 minus x, and we have already discussed about 90 minus theta, 90 plus theta, 180 plus theta, 180 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta, and we have already discussed in trigonometry 1 also, जहाँ पे हम लोग एंगल निकालना सीख रहे थे. तो i by 2 minus y एंड माइनस के साथ है साइन पाई बाय 2 माइनस x और साइन पाई बाय 2 माइनस y, पाई बाय 2 माइनस y ये दे रहा है. इसको प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ किसके बराबर है, कॉस ऑफ x प्लस वाई के बराबर. कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन. कॉस दिस इज पाई बाय 2 मतलब 90, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x, कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई मतलब साइन वाई. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस x, यहाँ पे साइन 90 माइनस वाई कॉस वाई तो कॉस वाई. अभी आप ध्यान से देखो तो एक माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो कैसा हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साथ साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई. तो कॉस से कॉस भी माइनस साइन एक्स साइन भी मतलब माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जो कि प्रूव करना था. ओके, दिस इज इक्वल टू द RHS. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. हाँ, सो अभी ये सब आपको प्रूव करना है. सो नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट वन. सेकेंड वाले में 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा को ओपन करना है. तो यू कैन डू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x को सॉल्व करके इस फॉर्म में बनाना है. मेरे हिसाब से तो आप इसको RHS से करोगे तो और बेटर आसानी से हो जाएगा. थर्ड वाला क्वेश्चन, बिकॉज यू हैव टू प्रूव ना, और इसमें साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो दिस इज द सिंपल थिंग दैट इज रिटन ऑफ फॉर्मूला है ना. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा. तो डायरेक्टली यू कैन डू cos a minus b and cos a minus b तो n plus 2 माइनस ए हो जाएगा. सो नाउ गेटिंग द थर्ड वन थोड़ा सा सही है. 1 प्लस 10x, ओके, और 1 माइनस 10x, इसका होल स्क्वायर दिखाना है, इसका होल स्क्वायर दिखाना है क्वेश्चन में. इसके इक्वल 10 पाई बाई 4 प्लस x, 10 पाई बाई 4 प्लस का x और अपॉन में 10 के पाई बाई 4 माइनस x इक्वल दिखाना है. तो मैं इसको क्या काम करूँगा, RHS से इसको सॉल्व करूँगा. RHS से थोड़ा और अच्छा इजी रहेगा क्योंकि हम इसमें अप्लाई भी कर लेंगे कंपाउंड एंगल का. तो 10a प्लस b का फॉर्मूला, तो 10 पाई बाई 4 प्लस का 10x इंटू में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये हो गया ऊपर वाले का फॉर्मूला. नीचे वाले में उल्टा कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस. क्योंकि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई साथ में कर देगा ताकि अभी जो डिनोमिनेटर में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है. तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. देखो 10 पाई बाई 4 1 होता है,
तो 1 प्लस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन एक्स, यहाँ पे भी 1 माइनस टेन एक्स हो गया, 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स माइनस टेन। तो आप ध्यान से देख सकते हैं न्यूमरेटर दोनों जगह सेम है और डिनोमिनेटर भी दोनों जगह सेम है, तो वही चीज आ गई जो LHS में था, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू LHS। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, LHS को RHS से, RHS को LHS से। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे कुछ भी फॉर्मूला अगर जो भी है आप उसको क्या करना है, कंपाउंड एंगल का यूज करके लगाना है, उसको सॉल्व करना है। जैसे कुछ प्रूफ करने वाला है, मान लो अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ क्वेश्चन जैसे 8 थीटा वाला है, तो 8 थीटा में tan को लिखते हैं ऐसा कि 5 थीटा और प्लस 3 थीटा, तो उसको फिर बाद में देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, बाकी तो सब सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में आपको क्या दे रखा है, जैसे सपोज प्रूफ करने का क्वेश्चन, tan ऑफ 8 थीटा, tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 5 थीटा माइनस और tan ऑफ 3 थीटा, ओके, इज इक्वल टू मल्टीपल में सबको tan 8 थीटा, tan 5 थीटा इंटू में tan 3 थीटा, इन सबका मल्टीप्लाई करना है, बराबर। तो इसको आपको ऐसे करना है, tan 8 थीटा को लिख दो ऐसा आगे करके tan 5 थीटा प्लस 3 थीटा ऐसे ही अपनी तरफ से, और फॉर्मूला इसको लगाओ और कंसिडर इसको करो, जैसे tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको ये सब प्रूव करना है। 3x वाला है, 3x 2x और 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, ये हो गया फॉर्मूला लगता। अब इस वाले टर्म को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे दिखेगा tan 8 थीटा, और ये दोनों टर्म है, इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 8 थीटा, tan 5 थीटा और tan 3 थीटा इज इक्वल टू में वही चीज आ जाएगा, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, क्योंकि न्यूमरेटर है। और फिर ध्यान से आप देखेंगे तो ये उठ के इधर और वो उधर चला जाएगा, तो tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इज इक्वल टू ये पूरा टर्म उधर माइनस वाला प्लस बन, तो tan 8 थीटा, tan 5 थीटा एंड tan 3 थीटा, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो इसलिए यू कैन प्रूव विद दिस थिंग। ओके, ये आपका प्रूफ जो पूछा था वही याद। ऐसे सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है किसमें, कुछ हद तक क्या सेम ही है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको ऐसी कुछ करना है ना, 45 को लिख देना है 35 प्लस 10 करके। अच्छा, जो 14 क्वेश्चन है उसमें कुछ भी आप मत करें, आप ना cos 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें 15 से, तो यू विल गेट। अभी जैसे ये क्वेश्चन है cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। कुछ क्वेश्चन में स्मार्टली मूव करना होता है, मतलब फॉर्मूला अगर याद है तो यू कैन डू 15 प्लस sin 15, और इसको प्रूफ करना है किसके इक्वल 1/√3 से। तो आप ना cos 15 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan 15 एंड 1 प्लस tan 15। अब अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो ये tan π/4 माइनस tan थीटा और tan π/4 1 प्लस tan a tan b, यानी tan 1 को tan π/4 लिख लो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक तरह से tan 45 माइनस 15 का फॉर्मूला है, तो दिस इज tan 30 डिग्री। सो नाउ tan 30 इज 1/√3। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा और आप प्रूफ कर सकते हो जैसा भी आएगा। तो इसके लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग।